Assalamu alaikum dear students. So you have the most welcome in this online lecture series. As you are aware from last few lectures, we are dealing with this one of the important topic of mathematics, that is trigonometry, and we are with exercise 8.1. From last lecture we finished up to question number 8. Now today we have a question number 9 like this. We have given a triangle ABC which is right angled at B. We have given a triangle ABC which is right angled at B, है ना, which is right angled at B, and we have given that tan A, we have given tan of A equal to 1 by root 3, and we have to find part number first. We have to find sin A cos C plus cos A sin C. Now see here, this is our question. We have a right triangle ABC such that tan A equal to 1 by root 3 sin A plus cos C plus cos A sin C. This is what we have to conclude. देखना बेटा, आप लोगों ने कहा हमारे क्वेश्चन में दिया है tan of A equal to 1 by root 3, but from given figure tan A equal to, according to your definition, opposite side to angle A divided by adjacent side to angle A. यही definition है ना. tan A की क्या होती है? opposite side to angle A. angle A का opposite side देखेंगे, that is BC divided by adjacent side, adjacent side is AB. तो बेटा आपने कहा BC की जगह 1 दिया है, AB की जगह root 3 दिया. You say this is root 3 and this is 1. Now we have to find AC, है ना. By PGT, by Pythagoras theorem, AC का whole square equal to BC square plus AB square. तो बेटा आपको AC का whole square मिलेगा 1 का square plus root 3 का square, that is 4. तो AC मिलेगा आपको 2. तो बेटा आप लोगों ने AC कैलकुलेट किया, AC किसके बराबर मिला? 2 के बराबर. तो आपने कहा अब सर हम निकाल सकते हैं sin A बाय डेफिनेशन, हमें साइन चाहिए ना, दैट इज साइड अपोजिट एंगल A डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज अपोजिट, दैट इज BC, दैट इज 1 डिवाइडेड बाय हाफ, दैट इज 1 by 2. और इसके बाद हमें सर cos C निकालना है. cos C इज एडजेसेंट साइड एंगल C डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, एंगल C का एडजेसेंट साइड दैट इज BC, दैट इज अगेन 1 डिवाइड बाय 2. मिला ये भी. इसके बाद आपको चाहिए cos A. आपने कहा cos A इक्वल टू एडजेसेंट साइड टू एंगल A डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज. जब हम एडजेसेंट साइड A करें दैट इज रूट 3 डिवाइडेड बाय 2. मिला ये भी. इसके बाद बेटा आपको चाहिए sin C, दैट इज साइड opposite to angle C divided by hypotenuse, side opposite to C, that is AB, that's again root 3 divided by 2, है ना. अब बेटा सभी वैल्यू जो मिले ना यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करना. आपने कहा दिस इम्प्लाइज sin A का वैल्यू कितना 1 by 2 इंटू cos C का 1 by 2 प्लस cos A का रूट 3 by 2 और इसका भी रूट 3 by 2. तो आपने कहा दिस इज 1 by 4 divided by 3 divided by 4, this is 4 by 4 sir, that is 1. have you got now? बेटा एक और बार देखना. आपने कहा हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल दिया है ABC, A, B and C. we have given tan A is equal to 1 by root 3, लेकिन आपने कहा tan A equal to 1 by root 3. by definition this is side opposite to angle A divided by adjacent side to angle A, that is BC divided by AB, that is 1 divided by root 3. इसका मतलब मेरा BC 1 के बराबर है, मेरा AB रूट 3 के बराबर है, मुझे रहा AC. तो इसको मैं निकालूंगा बाय PGT. जब PGT मैंने यूज किया हाइपोटेन्यूज स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर बेस स्क्वायर, आई गेट हाइपोटेन्यूज इक्वल टू 2. नाउ आई कैन कैलकुलेट इजीली sin A cos A sin C, then I adjust these values and we get 1. This was part number first. Now part number second. See what is your part number second. सभी लोग देखो बेटा ध्यान से. part number second of your question. part number second says that calculate value of cos A
और cos c माइनस sin a एंड sin c। बेटा cos a का वैल्यू कितना मिला था आपको, cos a √3/2 और बेटा cos c वो मिला था 1/2 माइनस sin a मिला था 1/2 sin c मिला था √3/2 है ना। तो आपने कहा दिस इज √3/4 माइनस √3/4 दिस एंड दिस कैंसल दैट इज 0। दिस वाज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 9। नाउ द क्वेश्चन नंबर 10 एंड इंपॉर्टेंट ऑफ द एक्सरसाइज। See question number 10. Question number 10 says that we have a right triangle PQR which is right angled at Q, and we have given that PQ plus QR is equal to 25 and PQ is equal to 5. Question number 10 says that we have a right triangle, this PQ and R. ये आपके पास एक right triangle दिया है, PQ given है 5 है ना। तो देखना बेटा, आपने कहा वी हैव ए राइट ट्रायंगल PQR such that PR plus QR equal to 25, ये गिवन है। दिस implies, यही है बेटा PQ plus QR, दिस implies जो PR का वैल्यू है दैट इज 25 माइनस QR, इसका नाम हाँ बेटा। तो बाय PGT वी हैव फ्रॉम राइट ट्रायंगल, और राइट ट्रायंगल क्या दिया है हमारे पास, PQ एंड R के PR का होल स्क्वायर इज इक्वल टू PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। तो बेटा दिस एम्प्लाइज PR का वैल्यू देना दैट इज 25 माइनस QR का होल स्क्वायर इक्वल टू PQ का स्क्वायर दैट इज 5 स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर एज इट इज। तो आपने कहा दिस एम्प्लाइज 6 to 5, क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर, मैं एक और स्टेप सिखाऊंगा। दिस इज 25 का होल स्क्वायर प्लस QR का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी इंटू QR इक्वल टू 25 प्लस QR का स्क्वायर है ना। ये यहाँ से पॉजिटिव और ये कैंसल, अगर यहाँ शिफ्ट करेंगे है ना बेटा। तो आपने कहा दिस इज 6 to 5 माइनस 50 QR इक्वल टू 25। तो ये मिलेगा 600 इज इक्वल टू 50 QR, 0 0 कैंसल, दिस इज 60 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू QR विच इज इक्वल टू 12। तो बेटा जो QR का वैल्यू वो कितना मिला 12 यूज इन फर्स्ट। तो फर्स्ट जो हमारी है ना PR का वैल्यू मिलेगा हमें 25 माइनस 12, तो PR का वैल्यू मिला 13। तो बेटा ये आपके पास 13 है। अब आपका जो ट्रायंगल है ना उसमें सारे साइड्स दिए है ना, अब आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो व्हाट यू हैव टू कैलकुलेट। तो बोलना क्वेश्चन में क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि यू हैव टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ, आपको किसका वैल्यू कैलकुलेट करना है, यू हैव टू साइन P cos P एंड tan P, ये साइन P। तो साइन P मीन्स साइड अपोजिट टू एंगल P डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। P का अपोजिट साइड दैट इज QR दैट इज 12 डिवाइडेड बाय 13 है ना। तो बोलना बेटा cos P दैट इज एडजेसेंट साइड टू एंगल P डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, P का दैट इज 5/13 होगा ये भी। और बेटा tan P सिंपली इसका न्यूमरेटर इसका है ना दैट इज वही साइड अपोजिट टू एंगल P डिवाइडेड बाय adjacent side to angle A that is 12 divided by 5. This was all about question number 10. Now question number 11 that is objective. So that is true false question. Where see पहला पार्ट आप लोगों को कह रहा है कि जो क्वेश्चन नंबर 11 है ना, पहला पार्ट कह रहा है कि जो tan ऑफ A है ना इसका वैल्यू ऑलवेज लेस देन 1 है, लेस देन 1। जो आपका क्वेश्चन है ना बुक पे कह रहा है कि tan A का वैल्यू लेस देन 1 है फॉर एनी एंगल ऑफ 1। आप लोगों ने कहा सर दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज वी हैव tan ऑफ 60 डिग्री फॉर सम एंगल दैट इज √3 विच इज ग्रेटर देन 1, देयरफॉर द गिवन क्वेश्चन इज फॉल्स है ना, बिकॉज tan A का वैल्यू 1 से भी बड़ा हो सकता है। और जो आपका पार्ट नंबर सेकंड है ना, पार्ट नंबर सेकंड कह रहा है कि sec ऑफ A इज 12 डिवाइडेड बाय 5 फॉर सम एंगल A, इज दिस ट्रू? आपने कहा यस, बिकॉज जो sec A है दैट इज हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय बेस, हाइपोटेन्यूज इज ऑलवेज ग्रेटर देन बेस एंड इट इज ट्रू। ठीक, इसके बाद जो आपके बुक का थर्ड पार्ट है ना
कह रहा है कि जो cos ऑफ ए है ना, cos ऑफ ए इट इज एन एब्रिविएशन फॉर कोसेक ए, तो ये भी फॉल्स है ना बेटा। तो इसके बाद आपके इसमें एक पार्ट है कि साइन ऑफ थीटा जो है ना दैट इज 4/3 फॉर सम एंगल। आपने कहा सर ये फॉल्स है बिकॉज साइन इज परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। यहाँ पर ये कह रहा है परपेंडिकुलर बड़ा है हाइपोटेन्यूज व्हिच इज नॉट द केस, हेंस इट इज false. Okay beta, this was all about exercise 8.1 and we finishes this.